ਵਾਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰੀ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਪਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮੇਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪਿਰਥਮੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪਿਰਥਮੀ ਨਵੇਂ ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਚੜਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰ
सिद्ध मंडली दृष्टि आई। सुमेर पर्वत ते गए ते सिद्धां दी जड़ी मंडली उत्थे सी वो गुरु साहब दे सामने है। 84 सिद्ध गोरखाद मन अंदर गणती वरताई। गोरख अते ओदे चेले जिन्ने सन उन्हां ने मन दे विच सोचिया ते गुरु साहब नाल विचार करदे ने भी असीं इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां हासिल कीतियां ने। ये रिद्धियां सिद्धियां हासिल करन तो बाद असीं इस पहाड़ दे उपर इहदी चोटी उत्ते पहुँच सके हैं। इन्नियां सिद्धियां प्राप्त करन तो बाद असीं इत्थे आए हैं ते ये कौन है भी जिहड़ा इन्नी छोटी उम्र है, किहड़ी शक्ति है जिहड़ी तैनूं सुमेर ते लैके आई है। गुरु साहब नाल गल करदे ने। तुसीं सोचो भी जड़ियां ये गल्लां कर रहे ने इहदा मतलब उस जगह ते पहुँचना कितना मुश्किल होवेगा, क्योंकि अज वर्गे उस वेले साधन नहीं है, कोई हैलीकॉप्टर नहीं है, कुछ नहीं है भी जिहदे नाल गुरु साहब उड़ के उस थां ते पहुँच जाण। गुरु साहब नूं कहिंदे ने उस सिद्ध पुछण सुण बालिया कौन शक्ति तुहे इत्थे लियाई। केड़ी ऐसी शक्ति है, केड़ी ऐसी तेरे कोल ताकत है। बालिया दा भाव है बच्चिया, जां गुरु साहब नूं बच्चा समझदे ने। वो कहिंदे ने भी तैनूं केड़ी ताकत है, तेरे कोल की ऐसा है जिहड़ा तैनूं इस सुमेर पर्वत ते भी लैके आ गया। सिद्ध पुछण सुण बालिया कौन शक्ति तुहे इत्थे लियाई। गुरु साहब कहिंदे ने शक्तियां दी लोड़ नहीं है मैनूं, तुहाडे कोल रिद्धियां सिद्धियां ने, बहुत कुछ है, पर मेरे कोल रिद्धियां सिद्धियां नहीं है। मेरे कोल इक्को ताकत है, हऊँ जपिया परमेश्वरो। मैं परमेश्वर नूं ध्याया है, परमेश्वर दे चरनां दा ध्यान धरिया है। भाओ भगत संग ताड़ी लाई। ताड़ी दा भाव है मैं रब दी भगती दी, रब दे भरोसे दे, रब दे नाम दी समाधि लाई है। तुहाडे वालियां समाधियां मेरे कोल नहीं है। फिर वो कहिंदे ने भी जे इन्हां तू रब दे चरनां विच जुड़िया, फिर अगला सवाल करदे ने भी तू सानू अपना नाम दस। आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाम तुम देहो बताई। तू अपना नाम ते दस भी जिहड़ा इन्नी छोटी उम्र, करीब इतिहास पढ़ोगे सतगुर दी उम्र उस वेले 48 कुछ साल दी उम्र बनती है। 48 साल दी उम्र ते ये सिद्धां दे सामने, क्योंकि सिद्धां दियां सैकड़े साल उम्रां ने, ये सोचते ने भी इन्नी छोटी उम्र दा बंदा ये साडे कोल साडे बराबर आण के बैठा है, कोई तो गल इहदे विच होवेगी। सिद्ध पुछण आखण सिद्ध सुन बालिया अपना नाम तुम देहो बताई। बाबा आखे नाथ जी। गुरु साहब कहण लगे हे नाथ जी मेरा नाम है नानक ते मैं परमेश्वर दा नाम जपिया है ते ओनू जप के मैं अड़ी जड़ी गति जड़ी अवस्था हासिल कीती है। नानक नाम जपे गत पाई, नीच कहाए ऊच कर आई। है भावें मैं नीच, पर मैं रब दे नाल जुड़ के, रब नूं ध्या के, रब दे चरनां दा ध्यान धर के मैं उच्चा हो गया। सिद्धां दे मन दे विच है भी इन्ना जुड़िया होया मनुख है, इन्ने हाज़र जवाब है। गुरु साहब ने बहुत कुछ उन्हां नूं समझाया। सिद्धां दे मन विच सी भी ये जिहड़ी गृहस्थी है, जिहड़ा परिवारां दे विच रहिंदे वो बंदे बिल्कुल भी उत्तम नहीं हुंदे, लालची हुंदे ने। ये चीज़ां दे विच इन्हां नूं रब दे नाल जुड़ना औखा हो जाता है। गुरु साहब ने बहुत बचन उन्हां नूं समझाए होणगे भी जे मुंदरां भी धारण करनियां ने, जे सुवाह मलन दे नाल कुछ मिलदा हुंदा। शब्द गुरु साहब दे बेअंत बाणी विच ऐसे ने, जोग ना खिंथा, जोग ना डंडै, जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना मुंदी मूंड मुंडाए, जोग ना सिंगी वाइए, अंजन माहे निरंजन रहीए, जोग जुगत इव पाइए। परिवार दे विच रियां ही रब की प्राप्ति हुंदी है। परिवार नूं छड्ड के कदी रब दीयां प्राप्तियां नहीं होया करदियां, जिहड़ियां चीज़ां नूं तुसीं लैके बैठे हो।
गुरु साहब ने उन्होंने समझाया। फिर वो कहते ने भी सानू दसो भी संसार दे विच किहो जिहे हालात बने हुए ने। फिर पुछण सिद्ध नानका, सिद्ध पुछदे ने हे नानका मात लोक विच क्या वरतारा। मात लोक दे विच की वरतारा है, दुनिया दे विच की कुछ वरत रहा, क्योंकि असी घर नूं छड्ड के परिवार नूं छड्ड के लंबे समय तो इत्थे हां। संसार नाल साडा कोई संपर्क नहीं है, संसार विच असी जांदे नहीं, ना कोई मिलदा ना आउंदा है। तूं दुनिया दे विचों आया, सानू दस संसार विच वरत की रहा है। सब सिद्धि ए बुझिया कल तारण नानक अवतारा। गुरु साहब कहंदे ने बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। सच दा चंद्रमा दिखाई नहीं दिंदा, सारे पासे कूड़ वरतिया होया है, कूड़ अमावस वरतिया। हौं भालण चढ़िया संसारा। मैं भी संसार की खोज विच ही निकलिया, किते मैनू संसार नज़र पै जाए, पर मैं जिधर वेखदा सच दा चंद्रमा किधरे भी नज़र ही नहीं आउंदा। हर पासे कूड़ वरतिया होया है। लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह मनुख अपने इन्हां कर्मां दे विच ही संसार दे विच पापां दे विच ग्रसिया होया है। हुण वेखो असी किसे दे कोल जाइए, दो जाने ने गुरु साहब, धन गुरु नानक साहब ने अते नाल भाई मरदाना जी ने, दो ही जाने ने, ते सिद्धां दी उत्थे पूरी दी पूरी मंडली है। जे कोई साडे वर्गा होवे ना ते सिद्धां कोलों डरदियां सिद्धां दी तारीफ करनी शुरू कर दिंदा, पर गुरु साहब ने उत्थे भी सच दा होका दिता। सच सुनाए सी सच की बेला। गुरु साहब सच दा होका देण निकले ते उन्होंने किसी किस्म का डर नहीं खादा। जदों सिद्धां ने पुछया संसार विच वापर की रहा है, गुरु साहब ने उस वेले समझाया उन्होंने कि कूड़ अमावस वरतिया हौं पालन चढ़िया संसारा। पाप गिरासी पिरथमी धौल खड़ा तर हेठ पुखारा। सारी दी सारी धरती जड़ी है पापां दे विच ग्रसी हुई है, कोई मनुख धर्मी नज़र ही नहीं आउंदा पिया। ते तुसी मैनूं पुछदे हो, तुसी धर्म दे नाल जुड़े हुए इंसान सी, तुहाडा कर्म सी लोकां दे विच धर्म नूं फैलाउणा। जे रब दे वाले पासे जुड़े सी ते जुड़न दा ते तुहाडा तां फायदा है ना जे तुहाडे जुड़े होए दा किसे नूं लाभ मिले। पर तुसी ते पर्वतां ते आ गए, जंगलां बेलियां विच लोक के बैठे हो, तुहानूं संसार नाल की लगे। सिद्ध छप बैठे पर्वती, सिद्ध सारे पर्वतां विच लोक के बैठ गए। कौन जगत को पार उतारा। जगत दा पार उतारा किवें हुंदा? तुहाडे वर्गे धर्मी लोकां ने संसार नूं तारना सी, पर तुसी जगत नूं छड्ड के त्याग के जंगलां बेलियां विच भटकदे पे हो। इसे करके गुरु साहब ने कहा सी काजी कूड़ बोल मल खाए, बामण नहावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध। संसार नूं भावें नहीं सी लुट रहा, पर इहनूं जीवन की जुगती का ही नहीं पता। गुरु साहब कहिंदे ये तो बिल्कुल उजड़े पै गया। तीने उजाड़े का बंद, तिन्ने दे तिन्ने उजाड़ा पाउण वाले रह गए। कहण लगे सिद्ध जी तुसी संसार दी की पुछदे पए हो, तुसी ते संसार नूं छड्ड के जंगलां बेलियां विच लोग गए। धर्मी मनुख दा काम हुंदा है जिथे वो आप रब दे नेड़े हो रहा होवे, उत्थे वो दुनिया नूं भी रब दे ज्ञान नाल जोड़ के उहनूं रब दे नेड़े करदा है। सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। जोगी ज्ञान में होणिया, हे जोगियो तुसी ज्ञान तो सखणे हो। तुसी समझदे हो यही धर्म है। निस दिन, निस दा भाव है रात ते दिन, दिन ते रात तुसी करदे कि निस दिन अंग लगाए निशारा। अपने शरीर दे उत्ते स्वाह मलण नूं ही तुसी धर्म समझी बैठे हो। पर तुहानूं मैं दस दियां संसार दा पुछदे हो, बाज गुरु डुब्बा जग सारा। संसार जिन्ना भी है ये गुरु तो बिना डुबदा पिया है, इनू कोई राह विखाउण वाला मनुख है ही कोई नहीं।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਸਗੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੁਕੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।